السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بواز بلند صلوات، دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی اذا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم آل محمد۔ دعا ہے خدا بند قدوس ملکہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین اس فرش عزا کی زینت بنے ہیں، آل محمد کا کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ان کے گھروں کو آباد رکھے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، مالک تمام مومنین و مومنات کو شہزادہ علی اصغر کا صدقہ اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں، مالک غیب سے ان کے قرض ادا فرمائے۔ جو تنگ دست پریشان حال ہیں، مالک مشکل کشائی فرمائے۔ آمین۔ ہر بندہ ضرور کہے آل محمد کا کریم اللہ مذہب حقہ کا بول بالا فرمائے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک سلطان عصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ بواز بلند صلوات۔ پھر بھی بواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں نیاز حسین۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، مالک امام زمانہ آپ کو اپنے حصار میں رکھے۔ یقیناً تھوڑے نہیں، جتنے ہو مخلص ہو بادشاہ کی عزاداری سے بواز بلند نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر۔ سلامت رہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ دونوں بازو بلند کر کے یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ آج کی یہ صف عزا، یہ صف معرفت، یہ منزل قبولیت اور اس پر موجود حاضرین، منتظرین، موالیان، عزاداران مظلوم کربلا کے دلوں پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اس بادشاہ کے حضور جو حجاب غیبت میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ وہ کائنات کا مطلق العنان اور مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم بیت اللہ کی چھت پہ رنجہ فرما کر عالمین کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ آپ جی سلامت رہیں۔ یہ کوئی فکرہ نہیں، یہ ایک دعا ہے۔ میں تقریباً 1 سال سے جب بھی ممبر پہ آیا ہوں اس ایک دعا سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور دوسرا فکرہ وہ کائنات میں اس کی قیمت کوئی نہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آغاز ہے اس رب الارباب کے اسم سے، آغاز ہے اس رب الارباب کے اسم سے جس کی حمد کو محمد ذرا نیاز حسین بے نیازی نہیں، زبان کو حرکت دیں، بادشاہ کے پرسے میں آئے ہیں آپ۔ رب الارباب کے اسم سے جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندیوں کو علی۔ آپ خاموش رہیں گے تو پھر بات نہیں نہ بنے گی۔ آپ بے شک تھوڑے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میدان کربلا میں، آپ کربلا میں جائیں نا 61 ہجری میں 9 لاکھ تھے، لیکن حسین بادشاہ کے ساتھ کتنے تھے؟ تھوڑے تھے لیکن مخلص تھے، تھوڑے تھے لیکن مخلص تھے۔ رب الارباب کے اسم سے جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندیوں کو علی، جس کی عصمت کو فاطمہ، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ آپ جی مولا عزت عطا فرمائے، مالک حصار میں رکھیں۔
उस रब्बुल अरबाब के इस्म से जिसके मिजाज को हुसैन कहते हैं। कायनात आलम व आदम में, कायनात में कोई इंसान उस वक्त तक आसमानों से जमीन पर ना उतरे जब तक खुदा के घर की मुकम्मल रजिस्ट्री अपने नाम पे मुंतकिल न करवा ले, उसे अली कहते हैं। बादशाह अली आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। कौन है अली? अली बादशाह वो हस्ती है जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं, जिसके बगैर शाजी ना चार मुकम्मल ना पंजतन, ना इनका गुजारा है ना उनका गुजारा। अली कायनात की बहुत बड़ी हस्ती है। दुनिया इस कोशिश में लगी है अली को छोड़ दें, अली को मिटा दें, अली के जिक्र को मिटा दें, अली का जिक्र करने वालों को मिटा दिया जाए। लेकिन शायद जाहिल लोगों की अक्लों पर पर्दे पड़े हुए हैं जहालत के कि कायनात आलम व आदम में अली बादशाह की विलायत कोई आम विलायत नहीं, अल्लाह की विलायत है, अल्लाह की विलायत है। गदीर अली बादशाह की विलायत है। और कुरान में विलायत, इस कुरान में जो मर्तबे हैं वो मुख्तलिफ हैं। रिसालत भी रुतबा है, ओहदा है। रिसालत ओहदा है, खिलाफत ओहदा है, नबूवत ओहदा है, बतूल ओहदा है, विलायत ओहदा है। सारे ओहदे एक जैसे सिवाय विलायत के। विलायत वाला ओहदा जो है वो हाकमियत वाला है। अगर विलायत वाला ओहदा हाकमियत वाला ना होता तो सूरह मायदा में अल्लाह क्यों कहता कि पहला वली मैं अल्लाह हूं, फिर रसूल है, फिर वो है जो हालत रकू में ज़कात देता है। कायनात की तफसीरें उठा के देख लो, अली के अलावा कोई नजर आए तो शाहरग काट दो। कायनात में कोई नहीं है अली के सिवा जो हालत रकू में ज़कात देता हो। मुकाम गदीर पे मेरे बादशाह रसूल अल्लाह ने 1.25 लाख का मजमा, 1.25 लाख सहाबियों का, पलानों का मिंबर, नबियों का सुल्तान बरसरे मिंबर आया। बात पहले की थी पिछली मजलिस में गदीर की, बात फिर गदीर की करता चलो। पलानों का मिंबर, नबियों का सुल्तान मिंबर पे अली बादशाह को बाजू बुलंद किया, ऐलान किया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। कानून है, कानून अल्लाह का बनाया हुआ कि कोई भी मजदूर मजदूरी करे, मजदूरी करने के बाद उसके बदन पे आया हुआ पसीना खुश्क हो जाने से पहले उस मजदूर की मजदूरी अदील भाई उसे दे देनी चाहिए। कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। मजदूर है रसूल, मजदूरी है। अली बादशाह की विलायत कर रहा है, अली बादशाह की विलायत का ऐलान किया। मजदूरी अल्लाह ने भेज दी रसूल को, पसीना खुश्क नहीं होने दिया, मिंबर से रसूल उतरे नहीं, अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए मजदूरी भेजी। मजदूरी क्या थी? अल्लाह नबियों के सुल्तान से कह रहा था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तूने अली की विलायत का ऐलान किया, मैं अल्लाह तुझसे राजी हो गया। तूने अली की विलायत का ऐलान किया, मैं अल्लाह तुझसे राजी हो गया। ए मोहम्मद तेरा दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, मैं अल्लाह राजी हो गया। मैं कहता हूं दीन तो आदम के दौर में भी था। न्याज़े हुसैन मेरे साथ बोलना, दीन आदम के दौर में भी था, लेकिन शादी अल्लाह राजी नहीं था। दीन इब्राहीम के दौर में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। दीन ईसा की मसीहाई में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। दीन मूसा के कोहे तूर में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। दीन नूह की कश्ती में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। दीन नमाज में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। दीन रोजे में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। दीन हज में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। दीन ज़कात में भी था, अल्लाह राजी नहीं था। जो अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन में अली की विलायत के बिना राजी नहीं होता, नजस मुल्ला की नमाज में अली के बिना राजी कैसे? मिल के नारा हैदरी। जो अल्लाह
जो अल्लाह सैयदुल अंबिया के दीन में अली के बिना राजी नहीं होता। आयत कुरान की पढ़ी है मैंने कि अल्लाह राजी हो गया इस्लाम से, दीन मुकम्मल हो गया अली की विलायत। भाईजान दुआ दीजिएगा, सादात बैठे। दीन मुकम्मल हुआ अली की विलायत पे। आज दुनिया बादशाह अली की विलायत को मिटाना चाहती है, बादशाह अली के जिक्र को मिटाना चाहती है। मैं दो फिक्रे पढ़ता हूँ सरकार अल्लामा नासिर अब्बास मरहूम के। मालिक इसका सवाब बादशाह की सरकार अल्लामा नासिर अब्बास की रूह को एहसाल फरमाए। ये जो दो फिक्रे पढ़ने जा रहा हूँ, ये दो फिक्रे भाईजान सोने के कलम से आप लिखें, इन फिक्रों की कीमत कोई नहीं दे सकता। सरकार अल्लामा नासिर अब्बास ने दुश्मन अली की आंख में आंख डाल के फिक्रा कहे थे। उन्होंने कहा था जो जाहिल कहता है कि हम बम धमाकों से अली का जिक्र मिटा देंगे, कत्लो गारत से अली का जिक्र मिटा सकते हैं, शिया टारगेट किलिंग से अली का जिक्र मिटा सकते हैं, अली के फजाइल मिटा सकते हैं, वो बंदे सुन लें, वो बंदे सुन लें। अली का जिक्र मिटाना कोई आसान काम नहीं है, नामुमकिन है अली बादशाह का जिक्र मिटाना। और अगर अली का जिक्र मिटाना ही चाहते हो तो कायनात में दो काम करो। एक, खुदा का घर काबा गिराओ, एक खुदा का घर काबा गिराओ। दूसरा, कायनात में जितनी मस्जिदें बनी हैं ये सारी मस्जिदें गिरा दो, क्योंकि काबे में बादशाह अली की आमद है, मस्जिद में बादशाह अली की शहादत है। फिक्रा कहा था कि जब तक खुदा का घर काबा बाकी रहेगा अली बादशाह की आमद याद रहेगी, जब तक मस्जिदें बाकी रहेंगी अली की शहादत याद रहेगी। कायनात में अली का जिक्र कोई मिटा नहीं सकता। अली कोई आम हस्ती का नाम है भाईजान, अली कोई आम हस्ती का नाम है। कायनात में सबसे बड़ी हस्ती है बाद अज अल्लाह और रसूल, बाद अज अल्लाह और रसूल सबसे बड़ी हस्ती अली है। आज जाहिल लोग कहते हैं जी अली काबे में आए, अली का मुकद्दर है जी जो अली काबे में आ गए। फिक्रा फजाइल का आखिरी पढ़ने लगा हूं, दुआ चाहता हूं। बादशाह अली काबे में आए, अली का मुकद्दर है। अली का मुकद्दर ना होता अली काबे में ना आते जी। अली काबे में आए 13 रजब, शेख साहब बादशाह अली की आमद है ना जी काबे में। जाहिल लोग कहते हैं जी काबे में आए अली का मुकद्दर। कायनात के कागज कलम इकट्ठे करो, रिकॉर्ड वीडियो हो रही है, डर किसी का नहीं। जिंदगी अली बादशाह की विलायत से कीमती नहीं है। यहां भी हुकूमत बादशाह अली की है, मरने के बाद भी हुकूमत अली की है। मौत का डर कोई नहीं, किसी चीज का खौफ कोई नहीं। जिंदगी उतनी जितनी अली चाहेंगे। कायनात के कागज कलम इकट्ठे करो, अली बादशाह का सबसे छोटा नौकर अली बादशाह के फजाइल गिनवाता है। फैसला खुद करना मुकद्दर अली का है या फजाइल अली के। कायनात में तू कहता है अली काबे में आए, अली का मुकद्दर। 13 रजब को खुदा के घर की दीवार कली बनी, फूल बनी, फिर कली बन गई, ये अली का मुकद्दर। 13 रजबुल मुरज्जब को घर बैठे अली की माँ को काबे में बुलवाया गया, ये अली का मुकद्दर। दीवार काबा फूल बन के फिर कली बन गई, अली का मुकद्दर। मेरे साथ बोलते रहोगे तो फजाइल आखिरी जुमला करने लगो। 13 रजब को घर बैठे अली की माँ को काबे में बुलवाया गया, अली का मुकद्दर। मलक साहब दुआ देना। दीवार काबा फूल बन के फिर कली बन गई, अली का मुकद्दर। 3 दिन तक अली अल्लाह के घर में मेहमान बन के रहा, यह भी अली का मुकद्दर। 3 दिन के बाद रिसालत जैसी शम्मा चल के अली जैसे परवाने को लेने गई, अली का मुकद्दर। 4 दिन के अली ने माँ के झूले में कल्ला अजगर को चीर के रख दिया, यह भी अली का मुकद्दर। 10 साल का अली 10 साल का अली ज़ाहरी 10 साल का अली दावत जुल अशीरा में मोहम्मद मुस्तफ़ा का हमायती बन के उठा, यह भी अली का मुकद्दर। और उसी दावत जुल अशीरा में कुफार के मजमे में मोहम्मद मुस्तफ़ा का अल्लाह के हुक्म से अली बादशाह के लिए यह कहना, तू मेरा वसी भी है, तू मेरा जानशीन भी है, तू मेरा खलीफा भी है, यह भी अली का मुकद्दर। या अली या अली या अली मेरी मदद फरमा। 10 साल के अली के लिए, 10 साल के मिल के हैदरी। 10 साल के अली के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना, तू मेरा वसी भी है, तू मेरा जानशीन भी है, तू मेरा खलीफा बिला फसल है, ये भी अली का मुकद्दर। अली बादशाह के दुश्मनों की हड्डियां, रसूल अल्लाह के दुश्मनों की हड्डियां तोड़ देना, यह भी अली का मुकद्दर। बद्र का फाते बना, अली का मुकद्दर। ओहद में कर्रार बना, अली का मुकद्दर। खैबर में फाते बना, अली का मुकद्दर।
जामुल में मर्द बना, अली का मुकद्दर। खंदक अली के हाथ पे फतह हुई, ये भी अली का मुकद्दर। कायनात के कौन कौन से फजाइल अली के गिनवाऊं, सिरातुल मुस्तकीम है, ये भी अली का मुकद्दर। सिरातुल मुस्तकीम है, ये भी अली का मुकद्दर। ज़हरा का शौहर है, ये भी अली का मुकद्दर। हसनैन का बाबा है, ये भी अली का मुकद्दर। अब्बास का बाबा है, ये भी अली का मुकद्दर। कायनात में अली के कौन से मुकद्दर गिनवाऊं। मुनकर अली का कहता है कि 13 रजब को अली बादशाह काबे में आए, ये अली का मुकद्दर है। सुन, यदुल्ला है, ये भी अली का मुकद्दर। शादी दुआ देना, यदुल्ला है, ये भी अली का मुकद्दर। ऐनुल्ला है, ये भी अली का मुकद्दर। वजहुल्ला है, ये भी अली का मुकद्दर। उज़नुल्ला है, ये भी अली का मुकद्दर। जंबुल्ला है, ये भी अली का मुकद्दर। लिसानुल्ला है, ये भी अली का मुकद्दर। अगर ये सारे अली के मुकद्दर है तो फिर याद रख कि मुकद्दर लिखने वाला भी अली वाला है। मिलके हैदरी, मुकद्दर लिखने वाला भी अली वाला है। कायनात में सबसे कीमती चीज है विलायत बादशाह अली की। भाईजान, सबसे कीमती पीर अली की विलायत है, इसमें कोई शक नहीं ना जी। सबसे कीमती मेरे पीर अली की विलायत है। अगर ये दुनिया, ये ज़माना मेरे पीर अली की विलायत को मान लेता, न पाक सैयदा का दर जलता, न पाक सैयदा का घर उजड़ता। कायनात की मलका आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाक सैयदा को पुरसा देने के लिए हजरात तशरीफ़ फरमाएं। सरकार इमाम मोहम्मद तकी बादशाह का पुरसा देना है। सबसे कीमती बादशाह अली की विलायत है। दुनिया अली की विलायत को मानती, न सैयदा का दर जलता, न सैयदा का घर उजड़ता। अगर ये दुनिया शादी अली बादशाह की विलायत को मान लेती, करबला में मौला हुसैन को कफन मिल जाता, पाक सैयदा को रिदा मिल जाती। अजरकुम मिनल्लाह, न्याज़ हुसैन जितने हजरात तशरीफ़ फरमा है, मालिक आपका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन मुखलस अज़ादारो, आज मेरे मौला इमाम मोहम्मद तकी बादशाह की शहादत, ये वो इमाम है शाह जी, वो इमाम है 7 साल की बज़ाहिर ज़िंदगी, 7 साल की उम्र में बादशाह ने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी हैं। 7 साल की उम्र में बादशाह ने बड़ी मसाइब देखे हैं। 7 साल की उम्र में 3 दर्द पड़ने मैंने बादशाह के। पहला दर्द, 7 साल की उम्र में बादशाह ने मदीना छोड़ा। 28 रजब को मेरे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा। मलिक साहब, भाईजान कितनी उम्र है बादशाह हुसैन की जब बादशाह मदीना छोड़े? 57 साल। 57 साल की उम्र में मेरे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा है। 7 साल की उम्र में मौला तकी बादशाह ने मदीना छोड़ा। हुसैन बादशाह ने मदीना छोड़ा, रात की तारीकी में नाना की कब्र पे आए। कब्र पे आके कहते हैं, नाना मेरा आखिरी सलाम, मैंने वापस नहीं आना। 7 साल की उम्र में मौला तकी बादशाह नाना की कब्र पे आए, आगे कहते हैं, नाना हुसैन मेरे जद ने भी तुझे आखिरी सलाम किया था। नाना तेरे रोज़े पे आखिरी सलाम करने आया हूँ, ज़रा कब्र से बाहर तो आ, मेरा सलाम कबूल कर, मैंने वापस मदीने नहीं आना। आज मैंने वापस मदीने नहीं आना। बादशाह मदीने से चले, बगदाद में आए। बगदाद में आए, पहला दर्द है ये मेरे मौला का कि 7 साल की उम्र में मदीना छोड़ा है। दूसरा दर्द मौला तकी बादशाह का पढ़ूं चंद जुमले, क्योंकि गरीब, बगदाद के गरीब का पुरसा है ना शाह जी, उस बादशाह का पुरसा है जिसके जनाजे पे बहनें भी नहीं रो सकी। उस बादशाह का पुरसा है जिसके जनाजे पे उसकी बहनें, भाई कोई भी ना रो सका। बगदाद की गलियों में मेरे मौला तकी का जनाजा था। अजरकुम मिनल्लाह, कायनात की मलका आपके आंसू कबूल फरमाए। दूसरा दर्द शाह जी मौला तकी बादशाह का, ये वो बादशाह है जिसने एक लम्हे में अपने बाप को भी कफन दिया, अपनी फुफ्फी को भी कफन दिया, अली रजा बादशाह को भी, पाक बीबी मासूमा कुम बादशाह को।
माँ फुफी अम्मा को भी कफन दिया, बाप को भी कफन दिया, फुफी का भी जनाजा पड़ा, माँ का भी जनाजा पड़ा, बाप का भी। बादशाह ने मदीना छोड़ा, शाह जी बगदाद में मेरे मौला ने घर खरीदा, बगदाद में घर खरीदा, बगदाद के एक कोने में मेरे मौला ने घर लिया। वो घर मौला का बगदाद शहर से काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर घर खरीदा और सिर्फ मेरे मौला और मेरे मौला की वालिदा उस घर में थे। एक दिन बादशाह तकी घर आए, माँ ने माथा चूमा, सीने से लगा के कहा बेटा घर खरीदा है, बगदाद शहर से इतनी दूर क्यों खरीद लिया। तड़प गया मेरा मौला, तड़प के कहता है अम्मा आधी आधी रात को मैंने मुसल्ले पे अपनी बहनों के नाम लेने होते हैं, आधी आधी रात अपनी बहन का नाम लेके रोता हूँ, आधी आधी रात कभी ज़ैनब फुफी का नाम लेके रोता हूँ, कभी करबला की शहदाओं के माओं का नाम लेके रोता हूँ। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपनी फुफी का नाम लूँ और कोई गैर सुन ले मेरी फुफी का नाम। आज़ादाराने मजलूम करबला मौला तकी बादशाह रात की तन्हाइयों में बगदाद शहर से दूर घर इसलिए लिया कि फुफी का नाम मुसल्ले पे लेते हैं, कोई गैर सुन ना ले। हौसला नहीं सैयद सज्जाद का जो उसी फुफी को शाम के बाजारों में बगैर चादर के देखता रहा। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। कायनात की मलका तुम्हारा पुरसा कबूल करे। उसी फुफी को शाम के बाजारों में बगैर चादर के देखता रहा। अज़ादारा ने मजलूम करबला मेरे मौला तकी बादशाह को उम्मुल फजल के जरिए मलऊन ने जहर दिलवाया। हसन बादशाह का विरसा मिला, जोधा बिनते अशज, खुदा लानत करे इस पे, इसने बादशाह हसन को जहर दिया। मौला तकी बादशाह को जहर मिला, आखिरी फिक्रा पढ़ने लगा। मौला तकी बादशाह को जहर मिला, हसन बादशाह को जब जहर दिया गया, शाह जी जहर करता क्या है, जहर जब जाता ना वजूद में तो जिगर के टुकड़े कर देता है, जिगर के टुकड़े कर देता है, सीने में आग लग जाती है। जब सीने में आग लगी ना जहर की वजह से हसन बादशाह के, तो हसन बादशाह ने कहा था मेरा कासिम लाओ, कासिम को ला के मेरे सीने पे सुलाओ, मेरे सीने पे लेटाओ। अज़ादाराने मजलूम करबला जब जहर मिली है ना तकी बादशाह को, तो जहर जब सीने में जलन हुई तो बादशाह ने उम्मुल फजल से कहा मुझे 2 घूंट पानी के पिला दे, मुझे 2 घूंट पानी के पिला दे, मेरा सीना जहर से जल रहा है। अज़ादारों उस मलौना ने पानी लाके मेरे मौला के करीब किया और पानी के घूंट एक एक करके जमीन पे गिराना शुरू कर दिए। पानी जमीन पे गिरना था कि मेरे मौला तकी बादशाह ने कहा बाबा हुसैन, बाबा हुसैन, मेरा जद हुसैन। ये कहना था कि हुसैन करीब आ गए। हुसैन ने आके तकी बादशाह का सर अपने पहलू में लिया और कहा मेरा लाल तू भी प्यासा जा रहा है, मैं भी प्यासा दुनिया से गया। मौला तकी ने कहा कि बाबा हुसैन आपके जाने में और मेरे जाने में देखे ना फर्क क्या है। जब आप दुनिया से जा रहे थे आपकी लाश पर आपकी बेटी बैठी थी, मेरे जनाजे पे मेरी बेटी भी नहीं आई। हुसैन बादशाह ने कहा तकी मेरा लाल, जब मेरी बेटी मेरे जनाजे पे थी ना तो मेरी बेटी को शेमर के तमाचों ने उठाया।